एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण में किसी एक राजनीतिक दल ने अगर डाका डाला है तो वो कांग्रेस पार्टी ने डाला है। सबसे पहले उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया, वो रिजर्वेशन के कारण ओबीसी का रिजर्वेशन कटा। उसके बाद में कर्नाटक में रातों रात कोई सर्वे के करे बगैर, पिछड़ापन तय करे बगैर सारे मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में डालकर उनके लिए 4% का कोटा रिजर्व कर दिया। इससे भी पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन कटा है। उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक किया। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम। कांग्रेस पार्टी एक झूठ फैलाकर जनता के बीच में भ्रांति पैदा करना चाहती है। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण की समर्थक है और हमेशा इसके संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएगी। And now let's remind you what the controversy around the fake video is all about. A fabricated video of Union Home Minister Amit Shah was circulated where he can be heard claiming that when the BJP comes to power, it will end reservations for SC, STs and OBCs. When in reality, what the Home Minister had said was that the BJP will scrap unconstitutional quota being given to Muslims in Telangana and ensure that rights of backward classes are not snatched away from them. Now, action is being taken against those promoting this fakery. But before we tell you more about that, here are the two versions of what Amit Shah had to say. भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। And this fake video has led to a pan-India crackdown. As far as the investigations are concerned, they are spreading all the way across Telangana. In fact, reports had come in that Revanth Reddy had been summoned. Sources said that Revanth Reddy had been summoned not as the chief minister of the state, but he had been summoned as, of course, the TPCC president, because sources say that it was the Telangana Congress which had shared certain clips of Amit Shah, and earlier today 2 men had been arrested by the Gujarat crime branch. These arrests are extremely significant. One of them is Congress MLA Jignesh Mevani's PA, Satish Vasani, who was arrested by the Gujarat police along with an Aam Aadmi Party worker, R.B. Babaria. This is following the arrest of Ritam Singh from Guwahati, which happened yesterday, who also happens to be the Congress's war room coordinator. Now, while the opposition is up in arms, the Home Minister's attack was backed by other senior leaders, and we'll be taking you through the BJP reactions coming in. But we have Mr. Mevani's reaction. Let's take a look at what he had to say first of all. सो नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भाजपा हर रोज अपने आईटी सेल के जरिए अनगिनत हजारों लाखों फेक वीडियो, फेक पोस्ट बनाते हैं, सोशल मीडिया में घुमाते हैं और उसके कारण दंगे हो जाए, इस प्रकार के परिस्थिति का निर्माण होता है। और इन तमाम मामलों का कॉग्निजेंस लिया जाए तो कम से कम 10,000 आरएसएस के, भाजपा के लोगों की गिरफ्तारी होगी। उन तमाम चीजों का कॉग्निजेंस न लेते हुए किसी ने शरत चूक से, गलती से व्हाट्सएप में घूमने वाला ये वीडियो फेसबुक में डाल दिया तो पूरे अमित शाह साहब को विक्टिम बनाने के लिए किसी छोटे दलित परिवार के लड़के को बलि का बकरा बना रहे हो। शर्म आनी चाहिए। इससे अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना है।
And talking about the BJP, many BJP leaders have hit out at the Congress. In fact, Defence Minister Rajnath Singh and UP Chief Minister Yogi Adityanath have hit out at the Congress. They've claimed that the Congress is trying to distort the reality to mislead the public. चर्चा बहुत है आजकल एक आरक्षकों को लेकर एक वीडियो वायरल कर दिया गया गृह मंत्री जी का। हालांकि अब उस पर जो है कर्नाटक के सीएम को नोटिस दे दिया गया है। हाँ, नोटिस दी गई है। मैं समझता हूँ किसी की बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। अब उसकी जांच हो रही है, पुलिस जांच कर रही है। स्टैंड क्या है आरक्षकों को लेकर बीजेपी? नहीं, स्टैंड का आरक्षण है रहेगा। वो कह रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक आरक्षण रहेगा। और हमने जो देखा है आज, जो सुबह हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है, दिखाया भी है कि कैसे उनके एक वीडियो को तेलंगाना कांग्रेस ने मैनिपुलेट करके उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया है। ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक क्रिमिनल एक्ट है। और क्रिमिनल एक्ट को पॉलिटिक्स में लाना और उनको उस पर डिपेंड करना, ये कांग्रेस का एक स्ट्रैटेजी है और ये कांग्रेस का एक तरह से डेस्परेशन है। देखिए, इससे बड़ा सफेद झूठ दूसरा नहीं हो सकता है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, इनके इतिहास के बारे में भी हर व्यक्ति जानता है। कांग्रेस का इतिहास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का गला घोंटने का रहा है। However, the Congress and its president, Mallikarjun Kharge, himself continues to defend the party and says that distorting videos is the habit of the BJP. वीडियोस बनाने का एक्सपर्टाइज उनके पास है। सोशल मीडिया से लोगों को बदनाम करने का उनके पास आइडियाज रहते हैं। जो भी लोगों को इमेज को बर्बाद करने का काम वो लोग करते हैं। हम कभी किए नहीं, करने वाले नहीं। हेट स्पीच नहीं करना चाहिए। मोदी जी हमेशा हेट स्पीच करते हैं। हेट स्पीच करने से ये होता है कि समाज में अलग अलग लोग बढ़ जाते हैं। तो मोदी कम से कम चुनाव में ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, वो कर रहे हैं। इसीलिए मैं अपील करता हूं उनसे भी कम से कम थोड़ा तो पेशेंस रखो, ऐसा फ्रस्ट्रेशन से बात मत करो।